Hello students, welcome back. Once again I am there with a new video which contains the explanation of new chapter, new poem which is Woodman Spare That Tree. It is a very easy poem which you can easily understand, and also a very wonderful poem that gives us a teaching, or we can say which teaches us a very good lesson that uh, each and every creature on this world has its own potential and has its own value. Okay, we should we should be kind enough towards every creature on this world. So, without wasting our much time, we should go through the chapter and let's see what does it contains. Okay, here we can see that a man is standing in a posture that suggests that he is trying to save a tree from another man who is trying to cut it down. So, uh, so let us watch what does this conversation tells us about. The poem starts with, Woodman, that tree touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I will protect it now. It was my forefather's hand that placed it near his cot. There, Woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not. When, but an idle boy, I shot its grateful shade in all their gushing joy. Here too my sister played. My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that oak stand. My heartstrings round thee cling, close as thy bark, old friend. Here shall the wild bird sing, and still thy branches bend. Oh, sorry for the interruption. Branches bend. Old tree, thy storm is still brave, and woodman, leave the spot, while I have a hand to save. Thy axe shall harm it not. So, this was the reciting of poem. As you can see, there are very simple words used in this poem by George Pope Morris, who is a very renowned American editor and poet, and a wonderful songwriter. Okay, uh, he has written this poem to give us a message that we should be protective. We should be protective to protect every plants and every creature which gives us something to cheer about. Okay, so let's go through the explanation of this poem. The poet says that woodman that tree touch not a single bough. It actually, the poet is not saying, he is warning. He is warning the woodman that tree, उस पेड़ को हिम्मत मत करना कि उस पेड़ को छुओ. टच नॉट अ सिंगल बो, उसकी एक भी डाल को, उसके एक भी ब्रांच को तुम छूना मत. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी. जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, तो किसने, इस पेड़ ने मुझे छांव दिया है, शेल्टर दिया है, घर दिया है. ठीक है. एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा. ठीक है. इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज गॉड. वो मेरे दादा थे, मतलब मेरे पूर्वज थे, मेरे एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने इस पेड़ को अपने कॉट मतलब घर हम कह सकते हैं, अपने घर के पास में इसको लगाया था. There, woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not. और अब फिर से वुडमैन को
वो क्या कह रहा है, वार्न कर रहा है कि वहीं पर जहाँ पर मेरे एंसेस्टर्स ने इसको लगाया था वहीं पर उसे रहने दो और तुम्हारी कुल्हाड़ी इसको नुकसान नहीं पहुंचाने पाए. When but an idle boy, I shot its grateful shade. When but an idle boy, I shot its grateful shade. In all their gushing joy, here to my sisters played. जब मैं एक आइडल बॉय था, आइडल का मतलब यहाँ पर है जब मैं वर्थलेस था, मैं जब किसी काम का नहीं था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही रहता था. मैं इसके ये जो छाँव है, इसके छाँव में, इसके शेड में रहा करता था. इन ऑल देयर गशिंग जॉय, गशिंग मतलब फ्लोइंग जॉय, मतलब एट दैट टाइम in my youngness I was playing here and also my sisters were playing here. तो मतलब हमने अपना पूरा बचपन यहाँ पे बिताया है, हमने अपना पूरा बचपन बिताया. मेरे जो बहनें हैं, हमने पूरा अपना बचपन या यूथनेस यहाँ पर स्पेंड किया है. माई मदर किस्ड मी हियर, मेरी जो माँ है इसकी छाँव में बैठ करके मुझे किस किया था उन्होंने, ठीक है, प्यार से उन्होंने मुझे किस किया था. माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, और मेरे हाथ को पकड़ करके मेरे पिता ने मुझे यहाँ चलाना सिखाया था. फॉरगिव दिस फुलिश टीयर बट लेट दैट ओक स्टैंड, ठीक है, मेरी इन बातों को छोड़ो लेकिन इस पेड़ को यहाँ पे रहने दो. फॉरगिव दिस फुलिश टीयर. माई हर्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी क्लिंग, द क्लिंग मीन्स स्टिक, ओके. माई हर्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी क्लिंग, मेरी जो हृदय की मतलब दिल की जो डोर है ना, मतलब ये है कि मेरा दिल धड़कता है तो उसकी जो डोर है वो इस पेड़ से जुड़ी हुई है. मतलब ये है कि हम दोनों का जो लाइफ है वो एक है. हम दोनों क्या है, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं लेकिन हमारी जो जान है वो एक है, हमारी जो लाइफ है वो एक है. क्लोज एज दाई बार्क ओल्ड फ्रेंड, ओके. जैसे उस पेड़ की जो छाल है उसके स्टेम को चारों तरफ लिपटी हुई है, ठीक उसी तरीके से मेरे जो धड़कन की डोर है ना, वो भी इसी पेड़ के चारों तरफ स्टिक हुई है, क्लिंग हुई है. हियर शैल द वाइल्ड बर्ड सिंग, यहीं पर वो जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो पक्षियाँ हैं, जो पंछी हैं, ठीक है, वो पंछी यहाँ पर आकर के गाना गाते हैं. एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड, एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड, और अभी भी उसकी इस पेड़ की जो डालियाँ हैं वो भी झुकती हैं, लहराती हैं, ठीक है. लहराने का मतलब यहाँ पर है कि अभी भी इसकी डालियाँ जो हैं इतनी मजबूत हैं कि इस पर हम झूला झूल सकते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट स्टैंजा सेज दैट ओल्ड ट्री द स्टॉर्म स्टिल ब्रेव, ये जो पेड़ है बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इतना साहस है कि ये तूफानों को भी झेल सकता है, ठीक है. एंड वुडमैन लीव द स्पॉट वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव दाई एक्स शैल हार्म इट नॉट. फिर से लास्ट में फिर से वार्न कर रहा है वो पोएट कि एंड वुडमैन लीव द स्पॉट, और वुडमैन तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ. वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव दाई एक्स शैल हार्म इट नॉट, जब तक मेरे पास हाथ रहेंगे, जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मैं रहूँगा, तब तक तुम्हारी कुल्हाड़ी इस पेड़ को नुकसान पहुँचा नहीं पाएगी, ठीक है. तो ये लिटरल मीनिंग थी. लिटरली आपने देखा कि हर एक लाइन का क्या यहाँ पे मतलब था, और इन्हीं लिटरली मीनिंग से भी आप बहुत हद तक समझ गए होंगे कि पोएट हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है, बताना क्या चाहता है. द पोएट एक्चुअली want us to say that he wants to tell us that it is actually not only a tree, it is a tree in vision of the woodman. वुडमैन देखता है और वो उसके लिए केवल वो एक पेड़ है, जो लकड़हारा है उसके लिए सिर्फ वो पेड़ है. उसकी पेड़ की डालियों को काट करके वो ले जाएगा, अपना जीवन यापन करेगा, वो अपने लाइफ को सर्वाइव करेगा, बेचेगा, कुछ भी करेगा. लेकिन for a person who is in companion, who is in company with him, who has survived his whole life under that tree, it's not a tree only for him, it is his friend. ये पेड़ उसके लिए एक फ्रेंड की तरह है, उसके लिए एक कंपेनियन की तरह है, उसके लिए एक साथी की तरह है, ठीक है, जिस पर हम कभी भी कोई चोट नहीं आने देंगे.
ठीक है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं, हाँ कहीं कहीं पर ज़रूरत होती है हमको, तो पेड़ों को काटना भी अनिवार्य हो जाता है। सूखे पेड़ हैं तो उनको हम काटते हैं, कहीं कहीं पर ज़रूरत है तो हमको पेड़ों को काटना ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन नॉट इन एवरी आस्पेक्ट्स। हम अक्सर देखते हैं कि बढ़ती हुई आबादी बढ़ रही है, किसी को रहने के लिए घर चाहिए, सड़क बनाना है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने हैं, तो डेवलपमेंट्स के लिए हम जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है। पर ऐसा हम अगर करते हैं तो ये नेचर के साथ, हम अपने खुद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने यही समझाया है कि वी शुड ट्रीट देम एज आवर कंपेनियन, वी शुड ट्रीट देम एज आवर कंपेनियन, एज आवर फ्रेंड, सो दैट नो वन कैन हार्म योर फ्रेंड। अगर हम उन पेड़ों को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, उन पौधों को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, तो कभी भी कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो ये पूरी मीनिंग थी इस चैप्टर की। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशंस हैं, तो यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई मी, ओके। सो in the last I will advise you, and I will request you to be friendly with our ecosystem। हमें अपने इकोसिस्टम के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम एज आवर कंपेनियन, ओके। सो गुड बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। वॉच दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।